Hello everyone, I'm Khushbu Natholia and you watching Conceptual Legal. Today I'm going to share my experience of preparing for NET examination. What actually helped me clear the examination, how did I prepare for it, from where did I prepare for it, and few other questions keeping in mind. So before I begin, let me just tell you that I cleared my NET examination on 31st December 2019 and that was my third attempt. That means मैं already दो बार देके fail हो चुकी थी, but then because I knew that I love teaching and I want to continue with that profession, so I had no other way. I had to clear my NET examination to get into a good college. So that's the first thing which you need to know. Ki why do we need to give NET examination? Well, if you want to be an assistant professor, in that case you have to clear your NET examination, and according to the UGC guidelines, that's the essential and minimum eligibility criteria to be appointed as an assistant professor. Talking about the eligibility criteria for the examination, the candidate must be LLM or he must be in the last semester of his masters. Then only you'll be eligible to appear in the examination. So that's the second question. The third question is, how do we prepare for the examination? Before I actually answer that question, let me tell you that the paper is divided into two parts. You have paper 1 and paper 2. Paper 1 is general, which is general for all the candidates in various different fields, and the paper 2 is your specification. That means whether you want to do it in law or education, English, Hindi, Urdu, that means whatever your specification, your line is, your profession is, uske accordingly you decide, you opt for your paper 2. I have done my post-graduation in law, so I gave my exam paper 2 in law specification, and I'll be sharing how to prepare for that subject. So to begin with, let's start from paper 2. The first thing which is very important is that you go through the syllabus very well. If I talk about law syllabus, it is huge. Like, it is huge. Why? Because it not only covers the topics or the subjects which we have done in the law school, but it also has a number of other topics which we have never touched as students, such as your Motor Vehicles Act, your Negotiable Instrument Act, Consumer Protection Act, then this comparative law, which is a new addition to the syllabus. So apart from the subjects which we have studied, such as Constitution, Public International Law, Tort, and Family Law, you have a number of other subjects too. So the first thing is, you go through the syllabus very well. I'll share the link in the description box. You can check that link to go through the actual syllabus for the examination. The second thing is, you need to do a reverse study. Now, what does that mean? That means हम जब भी किसी competitive exam के लिए तैयारी करते हैं, we have to prepare smart. We don't have to prepare everything. We have to prepare smart, because the aim is to clear the exam. And how do we do that? We do that only when we know as to what type of questions are asked in the examination. Because अगर मैं देखूं कि constitution law आ रहा है और मैं पूरा constitution का bare act पढ़ने या रटने या learn करने में लग जाऊं, well, it's not that only constitution is coming in the examination. You have n number of other acts too. So is it humanly possible that you mug up all the acts and then you reproduce it in the paper? No, it's not. Then how do you do it? You do it by focusing on those articles or sections or schedules which are asked in the examination. और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन या कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है? ये हमें तब पता चलता है जब हम रिवर्स स्टडी करते हैं. दैट मीन्स हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू.
हम लास्ट 5 या 10 ईयर्स के PYQs उठाते हैं, उनको देखते हैं और उनमें से फिर हम समझते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस या आर्टिकल्स या डेफिनेशंस या जूरिस्ट बार बार पूछे गए हैं। इससे हमें समझ में आता है कि पेपर किस तरह सेट किया जाता है और हमें किस तरह खुद को प्रिपेयर करना है। I'll tell you one instance। जब मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में प्रिपरेशन की, मैंने हमेशा वही सब्जेक्ट्स किए जो मैं हर बार करके जाती हूँ, या फिर जो मैंने पढ़े हैं कॉलेज में और जो मुझे लगता है कि हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, IPC। एंड पेपर में जाके मैं देखती थी कि मैंने जो पढ़ा है वैसा ऐसा कुछ आया नहीं है, और जो मैंने छोड़ दिया है वो तो मैंने छोड़ ही दिया है, वो तो मुझे आता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो व्हाट आई डिड इन माय थर्ड अटेम्प्ट वाज आई डिड दो सब्जेक्ट्स जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं और जो मैंने कभी नहीं किए, जैसे एनवायरमेंट लॉ, राइट, उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। ह्यूमन राइट्स हैं और कंपनी लॉ, इनमें से हमेशा आता है और ये मैं हमेशा छोड़ के जाती थी। सो इस बार मैंने क्या किया, मैंने वहां से शुरू किया। और देयर वाज वन मोर रीजन फॉर इट कि एनवायरमेंट लॉ और इन सब में क्या है, आपके बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप उनको रिवाइज करते रहे, तभी आपको वो याद रहेगा, अदरवाइज आप उसको भूलते चले जाते हैं। तो हाउ आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन वॉज, मैंने उन सब्जेक्ट से शुरू किया जो मैंने कभी नहीं किए थे और जिनको मैं हमेशा छोड़ देती थी, पर वो पेपर में हमेशा आते थे और जिनमें रटने का ज्यादा था। सो आई स्टार्टेड विद एनवायरमेंट लॉ, आई स्टार्टेड विद ह्यूमन राइट्स एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर इट। नोट्स में भी आई वांट टू टेल यू वन थिंग, स्टूडेंट्स का या जनरली स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन होता है कि हमें पूरे नोट्स बनाने हैं, बड़े बड़े नोट्स बनाने हैं। But I want to tell you that you are preparing for an objective paper and not a subjective paper. So आपके नोट्स जितने प्रिसाइज होंगे, आपको रिविजन करने में उतनी ही आसानी होगी। So please keep that in the back of your mind whenever you prepare for the examination. I'll show you my notes. Okay, मतलब see, when I started making my notes, I did it in a manner that जब मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करूं, आई डिड इट इन पॉइंट्स, आई हैड चार्ट्स, आई मेड पॉइंट्स एंड आई वाज लाइक कि जब मैं इनको रिविजन करूं तो मुझे इनमें कम से कम टाइम लगे, एंड दैट इज हाउ आई मेड नोट्स। सो मैं क्या करती थी, आज अगर मैंने इतना पढ़ा, मैंने पढ़ा कहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू आंसर दैट। आप जनरली जब भी शुरू करते हैं आप यही सोचते हैं कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक रेफर करें। So when I started preparing for it, I asked a lot of people and they told me True Man से पढ़ो, and I did buy that book. I have it abhi bhi, you can see it here. But it really didn't help me. That's my personal opinion though. It really didn't help me because I was not satisfied with the content. So then I switched to law students का favorite, that's the Bare Acts. And I started preparing from the Bare Acts. But वो Bare Acts के मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जो सब्जेक्ट्स मुझे आते थे। जो सब्जेक्ट्स मुझे आते ही नहीं थे उनमें I was very confused as to कहाँ से पढ़ूं. So then I found few good YouTube channel which really helped me. I did a lot of new subjects जो मैंने किए. I did it from Law Gurukul. I'll share the link for you. And it really helped me. Like कुछ questions शायद मुझे direct भी आ गए थे. They actually helped me in learning in a systematic and in a chronological manner, which was very useful. So मैं क्या करती थी, मैं 2 या 3 वीडियोस देखती थी, उनके नोट्स बनाती थी and then I used to try and remember them. नेक्स्ट डे मैं क्या करती थी, पहले उन 2 जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करती थी,
फिर आगे की वीडियो देखती थी, फिर आगे के नोट्स बनाती थी और उनको रिवाइज करती थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई रीच टू अ पॉइंट वेर इन मुझे 3 से 4 घंटे सिर्फ रिविजन में लग जाते थे. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओके फाइन, मुझे याद रह रहा है. बिकॉज क्या होता है कि हम कन्वेंशंस या आर्टिकल्स या फिर आपके केस लॉज वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो हमें याद रहते हैं, बट सारे नहीं रहते. और उनको याद करने का तरीका यही है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें. जितना आप उसको रिवाइज करेंगे वो आपको उतने ही याद होते चले जाएंगे. सो दैट इज समथिंग विच रियली हेल्प्ड मी. दैट इज द रिविजन एंड डेली रिवाइजिंग माई प्रीवियस स्टफ. So that's the key, that's actually the key which has helped me and which I will share with you, that you please do it that way. So that's how I did it. And to the question ki kahan se, so I used my Barracks and I used Law Gurukul wala YouTube channel, which really helped me. Now one more thing I want to add on paper 2 is, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन जनरली जब हम बेयर एक्ट की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सल का बेयर एक्ट प्रेफर करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्लीज गो फॉर पीएम बख्शी. वाई? बिकॉज जब आप पीवाईक्यूज देखोगे आपको रियलाइज होगा कि जो क्वेश्चंस है उनका एक तरीका है. आपको जैसे केस लॉज के लिए ऑर्डर्स वगैरह, तो द बेस्ट पार्ट इज दैट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन यू यूज दैट बुक्स. उसमें इनिशियली स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स भी हैं, तो वो आपको रिविजन में टाइम आते हैं. उसके बाद आपके बेयर एक्ट में ही सेक्शंस के नीचे प्रॉपर कमेंट्स में आपको दिए गए हैं, 3 4 पेजेस हैं, तो दे आर रियली हेल्पफुल. उनके लिए आपको स्पेसिफिकली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो बेयर एक्ट ही काफी है. ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू एड इज, जब आप सिलेबस देखेंगे ना आपको उसमें बहुत सारे एक्ट्स दिखते हैं और कुछ एक्ट्स में स्पेसिफिकली टॉपिक्स मेंशन होते हैं. जैसे आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंपटीशन एक्ट जो है उसमें सेक्शन 456 है स्पेसिफिकली मेंशन. तो स्टूडेंट्स मतलब व्हेन वी प्रिपेयर ना हम भूल जाते हैं, हम वो पूरा बेयर एक्ट देखने लग जाते हैं. वी डोंट हैव टू डू दैट. वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर व्हाट इज बीइंग रिटन इन द सिलेबस एंड वी हैव टू ओनली फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज. सो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड कि जब आप ये छोटे छोटे एक्ट्स करें तो आप पहले ढंग से सिलेबस को देखें कि कौन कौन से सेक्शंस आपके उसके टॉपिक के अंदर आते हैं और आप उतना ही करें. जबरदस्ती पूरा करने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. सो दैट इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर योर पेपर 2 लॉ. नाउ कमिंग टू पेपर 1. वेल मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पेपर 1 में ना इनिशियली 2 अटेम्प्ट्स में ज्यादा फोकस नहीं किया, इसलिए मैं हर बार 2 नंबर से या 3 नंबर से रह जाती थी. सो दिस टाइम आई न्यू दैट खुशबू, इफ यू हैव टू क्लियर इट यू नीड टू डू दैट लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन. वेल आई टेल यू, इसमें भी सेम, इसमें आपको किसी बेयर एक्ट की या किसी बुक्स की जरूरत नहीं है. आप एक ये पीवाईक्यू वाली बुक है, आई यूज दिस बुक आर गुप्तास, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सॉल्व, एंड इट हैज ऑलमोस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम, आई विल टेल यू, इट हैज ऑलमोस्ट 15 to 20 इयर्स के पीवाईक्यूज. तो जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हो ना, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, आपको अपनी स्पीड पे काम करने का मौका मिल जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि वेयर आर यू लैकिंग, आपके क्वेश्चंस क्यों नहीं निकल रहे या कौन से नहीं निकल रहे, एंड दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर इट. जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने लग जाए. प्लीज वही क्वेश्चन करने हैं जो या तो पेपर में आए हैं या आ सकते हैं, और उसके लिए यू शुड गो फॉर पीवाईक्यूज. इसमें जब आप सिलेबस देखेंगे पेपर 1 में देयर इज दिस वन क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है, प्रॉब्लम दी गई होती है और उसके 5 सब डिविजन्स होते हैं. दैट इज द
क्वेश्चन विच हेल्प मी टू क्लियर माई एग्जाम, और उसके लिए मैंने अलग से ट्यूशन लगवाई थी अपने लास्ट के 2 दिन में कि कोई मुझे आके बस ये ट्रिक समझा के चला जाए कि भाई एक्चुअली कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जनरली क्या होता है, जब हम वो क्वेश्चन देखते हैं ना, हमें लगता है हाँ ये हो जाएगा, ये मैं कर लूंगी, ये मैं पेपर में देख लूंगी, एंड वी टेंड टू अवॉइड इट, और वो कभी भी नहीं करते मतलब नेवर, बिकॉज उनकी ट्रिक्स होती है। अगर आपको वो एक ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आपके वो 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, दैट मीन्स 10 नंबर्स, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 नंबर्स, सो 5 क्वेश्चन सही होना इज अ बिग डील, and that actually was a game changer for me in that in that paper. So that's what I want to tell you guys also, that आपके इसमें जो पेपर 1 में सब्जेक्ट्स है जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन यू हैव इंग्लिश जिसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, यू हैव मैथ्स, यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला है ना, ये अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द पेपर ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह में ऑलरेडी इतना सारा है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट हो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। इसलिए आप वहां फोकस करो जो आपके क्लियर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है, उनके लिए आप क्वेश्चन पेपर्स करते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको समझ में आता रहे कि कैसे करना है। नाउ कटिंग इट शॉर्ट, सो मैं अपना टाइम टेबल बताती हूँ आपको। आई यूज टू गेट अप, आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग एट 7, जो मेरा लास्ट का 1 महीना था। 7 से 9 बज जाते थे मुझे पूरा रिविजन करने में। उसके बाद पूरा रिविजन किया पेपर 2 का और पेपर 1 का भी। पेपर 1 में भी मैंने सेम चीज करी, मैं अपने नोट्स बना लेती थी, जैसे मैं क्वेश्चंस करती थी जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव है, इस टाइप के हैं, उनके मैं नोट्स बना लेती थी और उनको फिर मैं रिवाइज कर लेती थी। सो 7 to 9 और 10 आई यूज टू रिवाइज। उसके बाद अराउंड 3 आई यूज टू सिट फॉर माई पेपर 1। मैंने सिर्फ लास्ट के 1 महीने ही पेपर 1 की ढंग से तैयारी की, उससे पहले के 2 या 3 महीने मैंने सिर्फ पेपर 2 पे फोकस किया। सो जो मेरा लास्ट मतलब 3 से लेके 4 या 5 बजे तक मैं 1 से 2 घंटे में सिर्फ पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। वेल, तब तक मैं ऑलरेडी PYQ सारे सॉल्व कर चुकी थी। तो लास्ट के 1 महीने में वही क्वेश्चन सॉल्व करती थी जो मेरे को अपने कुछ चैनल्स पे दिखते थे। जैसे पेपर 1 के लिए मैंने एग्जाम रेस को फॉलो किया एंड इट इज, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी गुड। मतलब इट हेल्प्ड मी रियली अ लॉट, बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स करा रखे थे और हर टॉपिक के शायद 2016 से क्वेश्चंस थे और मैंने सारी वीडियोस कर डाली थी और सारे क्वेश्चंस कर लिए थे एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई पेपर 1। I refer to that channel and I did my PYQs। तो मैं रोज 1 से 2 घंटा उसके क्वेश्चंस करती थी और फिर इवनिंग में अगर मेरा मन करता था तो मैं वापस से पेपर 2 के लिए अगर मुझे कुछ भी दिख जाता था या जो मैंने क्वेश्चंस मार्क करके रख रखे थे मैं उनको रिवाइज करती थी। सो दिस वाज व्हाट आई वाज डूइंग इन द लास्ट 1 month ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा देयर इज अ साइट ऑफ जागरण जोश, वो भी एग्जाम से 10-15 दिन पहले क्वेश्चंस निकालने शुरू करते हैं फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने वो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज फॉर पेपर 1, तो मैंने वो क्वेश्चंस भी किए, उनके प्रीवियस ईयर के भी किए, उससे पहले मतलब जितने भी क्वेश्चंस मुझे उनके दिखे मैंने वो भी रेफर किए। सो येस, दैट्स ऑल्सो देयर, आई यूज दैट ऑल्सो एंड दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई नेट एग्जामिनेशन। सो आई होप that my experience is in a way a bit helpful to you if you are planning to prepare for the examination. And if you have any doubts, you have any queries, please feel free to ask me and I will love to answer all the queries and help you in whatever manner I can. So that's all from my side today. I'll see you soon in the next video. Bye bye.